Hello everyone. So in this semester, we'll be doing the book Electromagnetic Induction and Electronic Devices. Okay, now this is the syllabus of this subject. It consists of 3 units, unit 1, 2 and 3. We'll do each of the units one by one. Now first we'll start with the unit 1. The unit 1 is basically about electromagnetic induction. You have already studied about electromagnetic induction in your 12th standard. Now, first we'll start with the first topic of unit 1. Now, before starting with the Helmholtz equations, we should know like what is electromagnetic induction, what is self-inductance, what is mutual inductance, what is coefficient of coupling. So this we'll do today. Now what is electromagnetic induction? You already know this. Now after the discovery of magnetic field associated with the current flowing conductor by Oersted, it was thought that it may be possible to produce electric current by a magnetic field. Now इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि Oersted ने क्या देखा था, जब हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होती है. तो इस डिस्कवरी के बाद ये सोचा गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाए. जैसे करंट फ्लोइंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दे किसी कंडक्टर में. So from the series of experiments performed in England by Michael Faraday and by Henry Joseph in United States, it was discovered that a changing magnetic field can always produce an electric current. तो ये जो सोचा गया था ये एक्चुअली में ट्रू निकला कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज चेंजिंग विद टाइम. If magnetic field is changing with time, that means when dB over dt is non-zero. जब magnetic field का differentiation time के respect में non-zero है, that means magnetic field जो है it is not constant, it is changing with time. In that case, an electric current can be produced. इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर magnetic field जो है वो changing है तभी electric current produce होगा, otherwise नहीं होगा. इस फिनोमिना को हम कहते हैं द वेरी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने 12th स्टैंडर्ड में. तो आज का जो लेक्चर है दिस इज बेसिकली योर रिपीटेशन. थोड़ा सा रिवीजन करोगे तभी आगे हायर लेवल के टॉपिक्स को समझ पाओगे. So how we can define electromagnetic induction? So electromagnetic induction is basically the phenomena by which an induced EMF is produced in a circuit due to the change of magnetic flux linked with it. हमारे पास अगर कोई सर्किट है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज चेंजिंग विद टाइम, देन इन दैट केस एन EMF इज इंड्यूस्ड. नाउ व्हाट इज EMF? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF करंट जो है वो भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है ये हम काफी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में देख सकते हैं, जैसे इंडक्शन कॉइल, ट्रांसफार्मर, मोटर. ये जो सारी चीजें हैं दे बेसिकली वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जब हम इसको किसी सर्किट में रखते हैं, जब हमारे पास एक सर्किट है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है linked with the circuit changes, then in that case an EMF is induced. This phenomena is known as electromagnetic induction, and this is just a repetition. You all already know about this very well. Now next is Faraday's law of electromagnetic induction. ये भी सबको पता है. Now what is Faraday's law of electromagnetic induction? On the basis of experimental studies, Faraday gave 3 laws of electromagnetic induction. ये सब तुम पढ़ चुके हो. I am repeating it again one by one. Now what is the first law of electromagnetic induction? It says that जो भी मैंने बोला
जब हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस देन एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, और अगर सर्किट जो है वो क्लोज्ड है देन इन दैट केस करंट बिगिंस टू फ्लो इन द सर्किट, दैट मींस द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, और ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हम इंड्यूस्ड वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर्किट में ये ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ है with the help of the change in magnetic flux. Now, what is the second law of Faraday's electromagnetic induction? The second law says that जो induced EMF है या current है वो तब तक ही रहेगा सर्किट के अंदर जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स flowing through the circuit becomes constant, then in that case the induced EMF or current becomes zero। जो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट शुड चेंज विद टाइम। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगी देन करंट फ्लो नहीं होगा। So magnetic flux if becomes constant then the induced EMF or current becomes zero. Now the third law says that the magnitude of induced EMF, magnitude की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे mod E, induced EMF को we denote by small letter E। जब हमने उसमें दो लाइंस लगा दी इस तरीके से that means we are talking about the magnitude. So third law says that magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Mod E is directly proportional to d phi upon dt. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज चेंजिंग विद टाइम तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है इट विल बिकम zero. So mod E is the magnitude of induced EMF and d phi upon dt is the rate of change of magnetic flux, or we can say that the change of magnetic flux with time. अब अगर मैं इस mod को हटाती हूँ then this expression becomes E is equal to minus d phi upon dt. Now why this minus sign comes you already know. This minus sign is because magnetic flux linked with the circuit जब change होती है तो EMF induce होती है ऐसी डायरेक्शन में जो अपोज करती है उस चेंज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेंज लॉ। So this you already know about the three laws of electromagnetic induction given by Faraday. Now we'll revise Lenz law. बेटा ये जो है ना this expression is very important and you already know this expression, so please remember this expression. Now Lenz law says that the direction of induced current, Lenz law जो है this basically gives the direction of induced current, and what is this definition of the Lenz law? It states that the induced current will flow in such a direction that it will oppose the cause which produces it. इस वजह से ये माइनस साइन जो है ये इस एक्सप्रेशन में आता है। मैग्नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा that it will oppose the cause which produces it. Cause क्या है? The rate of change of magnetic flux. ठीक है, तो ये हमारा लेंज लॉ है और ये इसकी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेना। ये ऑलरेडी तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से लेंज लॉ को बताया गया है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज थर्ड लॉ, E is equal to minus d phi upon dt, where negative sign gives the indication that the direction of induced EMF opposes the cause which produces it. ठीक है, now after revising the three laws of electromagnetic induction and Lenz law, we'll now proceed to self induction. Self inductance और mutual inductance भी तुम already पढ़ चुके हो, this is also a
Revision only. Now, what is self-induction? It is the property of the circuit by virtue of which it opposes any change in the strength of the current flowing through it due to the EMF induced in it. Now, इस लाइन का क्या मतलब है ये तुम्हें क्लियर होगा when we'll discuss about this circuit and this graph. इसको डिस्कस करते ही इस लाइन का मतलब तुम्हें क्लियर हो जाएगा. Now, to explain the phenomena of self-induction, 1 second, let me zoom it. Now, to explain the phenomena of self-induction, consider a coil S connected to cell E through a tapping key K as shown in the figure 4.2a. So here we have a coil. This is the coil represented by capital S, and this coil is connected to the cell E, which is connected through a tapping key capital K. Now when the key is pressed, जब हम इस की को प्रेस कर देंगे, that means ये ऐसे हो जाएगा, तो now this circuit is closed. अब हमारे पास ये complete circuit बन चुका है. Now when the key is pressed, अब क्या होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, तो करंट जो है वो फ्लो करेगा सर्किट में फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू. अगर करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हमने शुरू में ये बोला था जब हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहां पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड विद द कॉइल, इट विल आल्सो इंक्रीज. और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज चेंजिंग विद टाइम, देन इन दैट केस अ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड और अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच विल नाउ डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो जैसे ही हमने की को प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम. इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द कॉइल, इट विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम value. Now this magnetic flux is increasing from 0 to maximum, that means it is changing. So if magnetic flux is changing, that means an EMF is induced in the coil. So this change in magnetic flux results in the production of an induced EMF in the coil, and according to Lenz's law, ये जो direction होगी induced EMF की, ये इस तरीके से होगी that it will oppose the cause which produces it. जो बेस कॉज है इसको प्रोड्यूस करने का वो क्या है, दी ग्रोथ ऑफ करंट. अगर करंट इंक्रीज नहीं होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज नहीं होती, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं होती तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होती. सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरीके से होगी दैट इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट. इस वजह से क्या होगा, जो करंट है इट विल इंक्रीज स्लोली एंड टेक्स टाइम OR टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू. जो हमने इस ग्राफ में दिखाया, करंट जो है एकदम से इंक्रीज नहीं हुआ फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट. और जो टाइम लगा करंट को 0 से मैक्सिमम में जाने के लिए, दैट टाइम इज इक्वल टू OR. This is the plot between time and current. Current is increasing from this 0 to the maximum value, and the time taken in this phenomena is OR, and this is because of the production of induced EMF in the circuit. Now what happens if now the key is released? अब हमने जो की को प्रेस किया था इसको रिलीज कर दिया तो सर्किट जो है फिर से ओपन हो गया. दैट मीन्स करंट जो है वो अब डिक्रीज होगा फ्रॉम मैक्सिमम टू 0. ठीक है, नाउ करंट जो है इट विल डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0. अब करंट जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द कॉइल, इट विल आल्सो डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0. अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है मैक्सिमम से 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है. इसका मतलब फिर से इंड्यूस्ड EMF जो है वो सेटअप होगी इन द कॉइल, एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट विल नाउ अपोज द डिके ऑफ करंट. अब EMF इंड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अब ये जो EMF इंड्यूस हुई है ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी कि अब वो अपोज करेगी डिके ऑफ करंट.
फर्स्ट सेट में जब हमने की को प्रेस किया, उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ थी वो अपोज कर रही थी ग्रोथ ऑफ करंट। अब हमने की को रिलीज कर दिया, तो अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगी डिके ऑफ करंट। तो इस वजह से जो करंट है वो एकदम से मैक्सिमम से 0 पे नहीं आ जाएगा, इट विल टेक सम टाइम टू डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, एंड द टाइम taken in this phenomena is RQ. ठीक है, here you can read it. So the current does not drop to 0 instantaneously on releasing out the key, but it will take some time, and that time is equal to RQ. So this is self-induction, and this is the phenomena due to which an induced EMF is set up in a circuit due to change of magnetic flux through the same सर्किट। सेल्फ इंडक्शन, देखो मतलब ही पता चल रहा है, सेल्फ इंडक्शन, खुद का इंडक्शन होना। सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, ये इंड्यूस हो रहा है सर्किट में बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेम सर्किट। एक ही सर्किट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है, तो उसी सर्किट में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रही है। दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अब ये जो दो लाइंस मैंने शुरू में बोली थी, इसको भी पढ़ लो, अब समझ में आएगी। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस एनी चेंज in the strength of the current flowing through it due to the EMF induced in it. EMF induce होने की वजह से वो अपोज करेगा any change in the strength of the current. अगर करंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, तो इंड्यूस्ड EMF उसको इंक्रीज होने से रोकेगा, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, तो इंड्यूस्ड EMF उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। ठीक है, so this is self induction, and you already know about this. This is just the repetition. Now we have coefficient of self induction. This you also already know. The coefficient of self induction is denoted by capital L, which is also known as the self inductance of the coil. Now we know जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो सर्किट में हमारे प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। अगर कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो phi is directly proportional to I. If we drop the proportionality constant, if we drop this proportionality factor, then we say that phi is equal to Li, where L is the proportionality constant or the constant of proportion, and this is basically representing the coefficient of self induction or simply self inductance of the coil. This you already know. अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी प्रोड्यूस होगी। सो phi is directly proportional to I, and if we drop this proportionality sign, then we can say that phi is equal to Li, where L is the proportionality constant. Now what we know from the Faraday's third law, that E is equal to minus d phi upon dt. अगर किसी सर्किट में ये जो phi है, this is changing, then in that case a EMF is induced in the opposite direction, so we have a negative sign over here. So E is equal to minus d upon dt. Substitute the value of phi, which is L into I. Now L is the proportionality constant, so it can come out of the differentiation being constant. So E is equal to minus L di upon dt. So this is the relation between induced EMF, the self-inductance, and the current that is changing with time in the circuit. Now how we can define this capital L? The definition of capital L, ये भी तुम सबने already कर रखा है. If di upon dt is 1, then L is equal to minus E. So the coefficient of self-induction or the self-inductance of a coil, it is numerically equal to the induced EMF produced in the coil when current is changing at a unit rate in the coil itself. That means when di upon dt is equal to 1, then L is equal to minus E. Now, what is the unit of self-inductance or coefficient of self-induction?
Now from this equation 4.2 we can write L is equal to E upon minus di upon dt. E हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, तो इसकी यूनिट वोल्ट्स में होगी, ठीक है। हमारा जो करंट है इसकी यूनिट एम्पियर में होती है, टाइम जो है इसकी यूनिट सेकंड्स में होती है, ठीक है। तो हमें एल की यूनिट लिखनी है। बेसिकली जो यूनिट होती है सेल्फ इंडक्टेंस की वो होती है हेनरी, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये तुम लोग को विजिबल नहीं होगा, ये लिखा हुआ है E is equal to -1 volt, comma L is equal to 1 हेनरी। हेनरी को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल H और इसकी स्पेलिंग होती है HENRY, ठीक है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या है, हेनरी है, और हेनरी जो है वो किसके इक्वल है, जो हमारा E है इसकी यूनिट है वोल्ट्स में, डिनोमिनेटर में वी हैव एम्पियर्स को वी कैन डिनोट बाय कैपिटल A, सो दिस इज एम्पियर पर सेकंड, तो सेकंड जो है हमारे पास ऊपर चला गया, तो हेनरी जो है दिस इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है। सो 1 Henry is the coefficient of self-induction or self-inductance of the coil if current changing at the rate of 1 ampere per second producing an opposing induced EMF of 1 volt. जब भी इसको डिफाइन करोगे एग्जाम में तो ये वर्ड यूज करोगे अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये नेगेटिव साइन जो है ये आएगा, E is equal to -1 volt है, ठीक है। So this is how we can define 1 Henry. Now the CGS unit of L. CGS unit क्या होगी हमारी हेनरी की, 1 Henry is equal to 10 raised to power 9 electromagnetic units of inductance. 1 Henry is equal to 10 raised to power 9 electromagnetic units of inductance. इस रिलेशन को याद रखना कि हाउ द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज रिलेटेड टू द CGS यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। SI यूनिट हो गई 1 हेनरी और CGS यूनिट जो है वो हो गई EM यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। Now after this we will now proceed with the self inductance of a long solenoid. ये भी तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ये भी रिपीटेशन है, आज का लेक्चर कंप्लीट रिपीटेशन है। Now what is a solenoid? You already know. So we are considering a long solenoid of small cross-sectional area A. Let's say A is the area of cross-section of a long solenoid and the length is denoted by small l and the number of turns by small n and the current that is flowing through this solenoid is denoted by capital I. Now this is the figure which is representing the solenoid. Now as you already know, the magnetic flux density capital B at any point inside the solenoid, at any point well within it is given by mu naught capital Ni. जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है तुम लोगों के लिए, ये तुमने अपनी 12th स्टैंडर्ड में जहाँ सोलेनॉइड पढ़ा था वहां पर इस रिलेशन को डिराइव किया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है कैपिटल B at any point within the solenoid is denoted by mu naught Ni, where capital N is the number of turns per unit length. Number of turns को we are denoting by small n और length को we are denoting by small l. So capital N जो है here it will become small n upon small l. So we can write B as mu naught Ni upon L, where N upon L is the capital N which is representing the number of turns per unit length. So this is the magnetic flux density at any point well within it, where it is representing the solenoid, and mu naught is denoted by 4 pi into 10 raised to power minus 7 Weber per ampere turns. ये सबको पता है. Now next, if we know the magnetic flux density capital B
then how we can find the magnetic flux linked with each turn? We already know magnetic flux is equal to B into A, where here A is the area of cross section. So substitute the value of capital B. So phi becomes mu naught Ni A upon L. Now this is the magnetic flux linked with each turn. The total number of turns that we have is the small n. So the magnetic flux linked with small n turns, that will be equal to small n into phi. So total magnetic flux will become mu naught n square I A upon L. Now if we know phi, then how we can relate phi with E, the induced EMF? We already know from the Faraday's third law, E is equal to minus d phi upon dt. Now substitute the value of phi. Here mu naught is constant, n is constant, area of cross section is constant, length is constant, but current is changing. So बाकी सारी चीजें तो we can take out of the differentiation. Differentiation के अंदर सिर्फ रह जाएगा current. तो E is equal to minus mu naught n square A upon L into di upon dt. और self inductance में हमने देखा था that E is equal to minus L di upon dt. So when we compare these two equations, what we get on comparing these two equations, we can simply say this capital L is equal to mu naught n square A upon L. So this is the expression of the self-inductance of a long solenoid. So this is the expression for the coefficient of self-inductance of a long solenoid. The self-inductance or coefficient of self-inductance of a solenoid depends upon, किस पर डिपेंड करता है? कैपिटल L, यहाँ एक्सप्रेशन में देख के हम पता लगा सकते हैं. It depends upon the number of turns of the solenoid denoted by small n. Then it depends also on the length of the solenoid denoted by small l, and the cross-sectional area small a of the solenoid. Now अगर हमारा जो solenoid है उसका जो core है, if it has a relative, इसको correct करो, this is not permittivity, this is permeability. अगर relative permeability mu r है तो उस केस में हम mu naught को replace करेंगे mu से. म्यू नॉट हमारा क्या होता है? म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है. म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. म्यू हमारा क्या होता है? म्यू इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर के, वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू हमारा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है मीडियम का. सो म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, नॉट परमिटिविटी. तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गई कैपिटल एल की, वो आ गई म्यू इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल और म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल. Now we'll start with the next topic, which is energy stored in an inductance coil. यहाँ पर we'll find the expression of the energy stored. कैसे? Here we are considering an electrical circuit which is containing an inductance L. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है जिसकी इंडक्टेंस कैपिटल L है. जब हम उस सर्किट को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट इस्टेब्लिश होगा सर्किट में, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड विद द सर्किट दैट विल आल्सो इंक्रीज एंड दैट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नाउ opposing the growth of current from 0 to its peak value. So ये जो work done है by the current, this is stored in the magnetic field of the inductance coil. अब हम इस current को जब switch off कर देंगे, then EMF जो है it will again produced in the circuit, which will now tend to maintain the flow of current in the circuit. Thus work done by the current during its growth is recovered. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, suppose we are talking about when we
press the key. That means when the circuit is closed, in that case a current is established in the circuit. That means current is growing from 0 to its peak value. So we can say, let's say current grows at the rate di upon dt. Now then the magnitude of induced current, here we are talking about the magnitude. E हमारा क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी मॉड ई, सो वील ड्रॉप द नेगेटिव साइन. ई हमारा हो जाएगा एल इंटू डी आई अपॉन डी टी. नाउ इस एक्सप्रेशन की हेल्प से वील नाउ फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टेंस कॉइल. वो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है तुम लोगों के लिए, इसको समझो. करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, सबको पता है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. सो डी क्यू हमारा हो गया I इंटू डी टी. तो इस एक्सप्रेशन से Q हम कैसे निकालेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन. तो Q हमारा आ गया इंटीग्रेशन I डी टी. वर्क डन सबको पता है, हमें वर्क डन निकालना है ना, द एनर्जी स्टोर्ड. नाउ वर्क डन इज चार्ज इंटू पोटेंशियल, सबको पता है. पोटेंशियल की यूनिट भी वोल्ट होती है, तो पोटेंशियल को वी कैन राइट एज L इंटू डी आई अपॉन डी टी, दिस एक्सप्रेशन E. एंड चार्ज को वी कैन राइट एज इंटीग्रल I डी टी. तो वी हैव इंटीग्रल, चार्ज की एक्सप्रेशन को पुट कर दो I डी टी. पोटेंशियल हमारा क्या है, L इंटू डी आई अपॉन डी टी. यहाँ पे हमने W में चार्ज और पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को डाल दिया. तो W हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन L di upon dt into I dt. Now what will happen, dt and dt will cancel out. तो W हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन L I di. ठीक है, L I di upon dt into dt है, dt dt cancel out हो गया. So this is equal to L into integration I into di. L जो है वो constant है, L is the self inductance which is the proportionality constant. So if this is a constant we can take it out of the integration. तो हमारे पास इंटीग्रेशन में रहा I into di. तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम करंट की क्या ले सकते हैं, डिफरेंस. यहाँ इंटीग्रेशन करंट के टर्म्स में है, तो करंट जो है इट इज ग्रोइंग फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू. लेट्स से द जीरो मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज I नॉट. ठीक है, तो इसको अब हम इंटीग्रेशन करेंगे. I की इंटीग्रेशन क्या होगी, I स्क्वायर अपॉन 2. पुट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारे पास वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड हो गया हाफ L I नॉट स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड और द वर्क डन in an inductance coil in increasing the current from 0 to the peak value, where I naught जो है, this is the maximum value of current which is in amperes. Capital L is the self inductance which is measured in henries, and the work done or the energy stored we already know is measured in the units of joules. So ये जो relation है हमारा, तो it gives the energy stored inside an inductance coil, and this derivation is important from your examination point of view. एग्जाम में जो है ये भी आ जाता है तुम्हारा, ये भी important है, self inductance of a long solenoid. इसको भी अच्छे से करना है. एनर्जी स्टोर्ड का डेरिवेशन जो है वो करना है, सिंपल है. यू हैव टू यूज द फैराडेज थर्ड लॉ, E is equal to minus d phi by dt. Phi is equal to Li, so E is equal to minus L di by dt. We are interested in the magnitude, so we will drop the negative sign and we get E is equal to L di upon dt. Then simply we can write work done as charge into potential, which is equal to integral L di upon dt into I dt. ये कैसे आया, ये मैं already explain कर चुकी हूँ तुम लोगों को. So यहाँ से we can derive the work done or energy stored inside an inductance coil, which came out to be half L I naught square. So अगर इस relation में I put I naught is equal to 1, तो हमारा capital L क्या हो जाएगा, 2 into W. Thus the self inductance of a coil may be, ये diffused नहीं है, this is defined, may be defined as the twice the energy stored. This is not stirred, this is stored. जो गलतियां हैं मैं साथ के साथ बता रही हूँ, इसे अपनी बुक में मार्क कर लेना. आर चांद की बुक खरीदनी है, इस बुक को सब खरीद लो. So this is the another definition of capital L. The self inductance of a coil may be defined as twice the energy stored in it when a unit current flows through it.
So this is the derivation of the energy stored in an inductance coil, and this is the very simple derivation. Now after discussing with self-inductance, we will now come to the mutual inductance. Now what is mutual inductance? It says that let us consider two coils P and S. सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास सिंगल सर्किट था, सिंगल कॉइल थी. म्यूचुअल इंडक्शन में वी हैव टू कॉइल्स. इसमें क्या है हमारे पास, जो लेट्स से दिस P इज द प्राइमरी कॉइल, दिस S इज द सेकेंडरी कॉइल. जो हमारे पास कॉइल P है इसको हमने कनेक्ट किया इन सीरीज विद अ बैटरी E and a tapping key K, and this is known as the primary coil. Then we have a secondary coil which is connected to the galvanometer capital G. Now what happens, जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो अब हमारा ये जो सर्किट है ये क्लोज हो गया. सर्किट क्लोज होने की वजह से ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट फ्लो होगा फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू. जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कॉइल वी हैव टू कॉइल्स. तो फर्स्ट कॉइल जो है वो एक सर्किट से कनेक्टेड है. जब हमने की को प्रेस किया सर्किट क्लोज हो गया तो प्राइमरी कॉइल जो है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होने की वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन करंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस कॉइल आल्सो इंक्रीजेस. इसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू द नेबरिंग कॉइल विच इज S सेकेंडरी कॉइल. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है विच इज पासिंग थ्रू द नेबरिंग सेकेंडरी कॉइल इट विल आल्सो इंक्रीज. अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज इंक्रीजिंग, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग. चेंज होने की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF और करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो प्रोडक्शन है वो अपोज करेगा उस चीज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया. सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट जो हमारा प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोज करेगी प्राइमरी कॉइल में जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसकी ग्रोथ को. प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज हुआ जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हुई. मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से वो चेंज हुई जिस वजह से EMF इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल S में. सेकेंडरी कॉइल S में EMF या करंट इंड्यूस होने की वजह से उस इंड्यूस्ड EMF और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन इस तरीके से होगी दैट इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. ठीक है. नाउ अब क्या होगा, जब करंट हमारा मैक्सिमम हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी मैक्सिमम हो गई. दैट मींस अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल मैक्सिमम हो गई और कांस्टेंट हो गई. करंट जो है हमारा वो इंक्रीज हो गया 0 से मैक्सिमम तक. अब जब करंट हमारा मैक्सिमम हो गया दैट मींस I0 हो गया, तब मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारी कांस्टेंट हो गई. मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, नाउ इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. अब हमारा d∅dt 0 है, देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. इस वजह से जो EMF इंड्यूस हुआ था सेकेंडरी कॉइल में अब वो भी 0 हो जाएगा. और ये कैसे पता चलेगा, ये इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से. गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है दैट मींस करंट और EMF इंड्यूस्ड 0 है. अगर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट मींस EMF या करंट प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ अब हमने की को रिलीज कर दिया, दैट मींस सर्किट को हमने ओपन कर दिया, तो क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है अब वो डिक्रीज होगा फ्रॉम मैक्सिमम टू 0. अब करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक्ड है वो भी डिक्रीज होगी. दैट मींस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है नेबरिंग सेकेंडरी कॉइल में वो भी डिक्रीज होगी फ्रॉम मैक्सिमम टू 0. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है दैट मींस इट इज चेंजिंग विद टाइम. Due to this rate of change of magnetic flux, again an EMF or current is induced in the secondary coil. और ये हमें पता चलेगा by a deflection in the galvanometer. अब लेंज लॉ की वजह से जो अब करंट इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी दैट वो अपोज करेगा करंट का डिक्रीज होना इन द प्राइमरी coil.
So this is how this circuit works. पहले कॉइल में अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जो उस इंक्रीज को रोकेगा। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो अब इस करंट के डिक्रीज को रोकेगा बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ। और अगर करंट कांस्टेंट हो जाता है तो उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है वो भी जीरो हो जाता है, since there is no rate of change of magnetic flux. Thus we see that at the time of make and break of primary circuit, that means जब हम की को प्रेस करते हैं या जब हम की को हटा देते हैं, induced EMF प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, जबकि there is no electrical contact between the two coils. इन दोनों कॉइल्स के बीच में देखो कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, पी और एस को कोई वायर कनेक्ट नहीं कर रही। इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअली इंड्यूस होना करंट या ईएमएफ का एक कॉइल में दूसरी कॉइल की वजह से। So the phenomena of producing induced EMF in one coil by changing the current in the neighboring coil is known as mutual induction. ठीक है, सेल्फ और म्यूचुअल में बस इतना फर्क है, सेल्फ में वी हैव अ सिंगल कॉइल, उसी में करंट इंक्रीज हो रहा है, उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। म्यूचुअल में वी हैव टू कॉइल्स, एक कॉइल में करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दूसरी कॉइल में इस करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस करा था वैसे ही हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है कैपिटल एस, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 कब प्रोड्यूस होती है? जब प्राइमरी कॉइल कैपिटल पी में करंट फ्लो करता है। लेट्स से प्राइमरी कॉइल में जब हमने की को प्रेस कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया और उससे जो करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से वो I1 है। इस करंट के फ्लो होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है लेट्स से वो φ2 है। तो φ2 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I1 के। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो φ2 हमारा हो गया m into I1, where m is the proportionality constant or denoted by the coefficient of mutual induction or simply mutual inductance of two coils. Now अब क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में φ2 प्रोड्यूस होने की वजह से EMF इंड्यूस होगा। लेट्स से दैट इंड्यूस्ड EMF in the secondary coil is denoted by E2. So E2 is equal to minus d phi2 upon dt according to the Faraday's third law. Now substitute this value of φ2 which is equal to m into I1. M is a constant, so it can come out of the differentiation. So we have E2 is equal to minus m into di1 upon dt. Now जैसे हमने कैपिटल L को डिफाइन किया था, इसी तरीके से हम यहाँ कैपिटल M को डिफाइन कर सकते हैं। If d phi 1 upon dt is equal to 1, then E2 is equal to minus m. So the coefficient of mutual induction or mutual inductance of two coils is numerically equal to the induced EMF produced in one coil when the current is changing at a unit rate in the other coil. Now इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना, EMF प्रोड्यूस हो रहा है इन वन कॉइल और करंट जो है वो चेंज हो रहा है एट अ यूनिट रेट इन दी अनदर कॉइल। P कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो S कॉइल में EMF इंड्यूस हो रहा है। ना यूनिट क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस की? यूनिट वही है जो सेल्फ इंडक्टेंस की थी, हेनरी। यहाँ पर हम हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे? E2 हमारा क्या है? माइनस m इंटू di1 अपॉन dt, तो कैपिटल M हो गया माइनस E2 अपॉन di1 अपॉन dt। ठीक है, here the SI unit म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी है which is denoted by capital H। तो E2 को अगर मैं 1 वोल्ट लूं और di1 अपॉन dt को -1 एम्पियर पर सेकेंड, तो मैं हेनरी को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? इट इज
said to be 1 Henry, the mutual induction of two coils said to be 1 Henry if current is changing at a rate of 1 ampere per second in one coil produces an opposing induced EMF of 1 volt in the another coil. इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम में आ जाता है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। और जब इसको डिफाइन करोगे तो इस वर्ड को लिखना मत भूलना, अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अपोजिंग वर्ड हम यूज कर रहे हैं इस नेगेटिव साइन को इनकलकेट करने के लिए इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। और वन कॉइल और अनदर कॉइल का भी ध्यान रखना है जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। और हेनरी जैसे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस की, उसमें क्या रिलेशन होगा, सेम 1 हेनरी इज इक्वल टू 10⁹ EMU ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर हेनरी इज द एसआई यूनिट, EM यूनिट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वील डू नाउ, अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे ऑफ टू सोलेनॉइड्स। हमने जैसे सेल्फ इंडक्टेंस निकाली थी लॉन्ग सोलेनॉइड की, उसी तरीके से अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे ऑफ टू सोलेनॉइड्स। कैसे निकालेंगे, वी आर कंसीडरिंग टू सोलेनॉइड्स कैपिटल P एंड कैपिटल S, where solenoid S is closely wound over P as shown in this figure। इसको हम कैसे करेंगे, लेट्स से स्मॉल l जो है दिस इज द लेंथ ऑफ द प्राइमरी सोलेनॉइड, A जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, N1 और N2 क्या है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे सोलेनॉइड कैपिटल P में, N2 हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड कैपिटल S में। लेट्स से हमारे पास जो सोलेनॉइड है कैपिटल P, उसमें करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल I, तो करंट फ्लो करने की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल B का मैंने ऑलरेडी बताया था, म्यू नॉट कैपिटल N इनटू I होता है, फिर कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, लेंथ स्मॉल l है, तो इसका जो कैपिटल B होगा, दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ प्राइमरी सोलेनॉइड हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा म्यू नॉट, this is mu naught into N1, N1 is the number of turns in the primary solenoid divided by the length of the solenoid into the current flowing through the primary solenoid। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, दिस B इंटू एरिया, तो 5P हमारा आ गया म्यू नॉट N1I इंटू A अपॉन L। अब जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज क्लोजली वाउंड ओवर द प्राइमरी सोलेनॉइड P, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S वो भी सेम होगा, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगी प्राइमरी में, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा सेकेंडरी में, जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो अगर प्राइमरी का हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ये है, तो सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स भी यही होगा। अब ईच टर्न के लिए जो हमारा सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स आया, वो आया म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I इंटू A अपॉन L। नाउ अब हमें निकालना है द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी सोलेनॉइड। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को लेट्स से वी आर डिनोटिंग बाय phi-s। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, एक टर्न की मैग्नेटिक फ्लक्स है म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I इंटू A अपॉन L। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू I इंटू A अपॉन L। ईच टर्न के लिए तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ये हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में N2 है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास ये हो गई, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, फ्रॉम द फैराडेज थर्ड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस d phi s अपॉन dt। जो हमारा सेकेंडरी सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोड्यूस होने की वजह से, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दिस इज इंक्रीजिंग, इस वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, और इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैराडेज थर्ड लॉ। E इज इक्वल टू माइनस d phi s अपॉन
dt, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ phi s, जो कांस्टेंट है उनको डिफरेंशिएशन के बाहर लो, जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएशन के अंदर, तो म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l डिफरेंशिएशन के बाहर आएंगे और करंट डिफरेंशिएशन के अंदर आएगा ना। म्यूचुअल इंडक्शन की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है, E is equal to minus m di अपॉन dt। ना अब हम अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों एक्सप्रेशन से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M। सो कैपिटल M हमारा क्या हो गया, दिस वन, म्यू नॉट इंटू n1 n2 इंटू a अपॉन l। So this is the final expression of the coefficient of mutual inductance of the two solenoids। ठीक है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैपिटल L ऑफ अ सोलेनॉइड और कैपिटल M ऑफ टू सोलेनॉइड्स, इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसका डिफरेंस है। कैपिटल L में ये n स्क्वायर हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक ही सोलेनॉइड है, कैपिटल M में ये n1 इंटू n2 हो जाता है, वेयर n1 हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी सोलेनॉइड में और n2 हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी सोलेनॉइड में ना। आज इसके बाद हम ये लास्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे विच इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसके ऊपर एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल आ जाता है। सपोज वी हैव टू कॉइल्स P and S and they are coupled together, so there is always some leakage of magnetic flux associated with them। मैग्नेटिक फ्लक्स जो P में है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है S में नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ लीकेज हमेशा रहता है। ठीक है, अगर लीकेज जो है वो बहुत कम है तो हम कहते हैं जो कपलिंग है वो बहुत क्लोज है या टाइट है। अगर लीकेज जो है वो ज्यादा है तो हम कहते हैं कपलिंग जो है वो लूज है। तो ये जो कपलिंग है, दिस इज बेसिकली डिफाइंड बाय अ फैक्टर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग विच इज डिनोटेड बाय K, and by definition this K is equal to the ratio of the mutual induction and the square root of the product of the inductances of the two coils L1 and L2. So by definition this K is equal to M upon under root L1 into L2, where capital M is the coefficient of mutual induction, L1 is the coefficient of self-induction of the one coil, L2 is the coefficient of self-induction of the another coil, and K is the coefficient of coupling which is equal to M upon under root L1 upon L1 into L2. So इस रिलेशन को याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। K is equal to M upon under root of L1 into L2। अगर हमारा M इक्वल हो गया अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 के, तो उस केस में K 1 हो गया। K अगर 1 हो गया दैट मीन्स देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द टू कॉइल्स P and S। यूजुअली हमारा जो K है वो लेस देन 1 होता है, दैट मीन्स देयर इज सम लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डिट्टो 1 नहीं है, K की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब कुछ लीकेज तो रहेगी मैग्नेटिक फ्लक्स की। इस टाइप का एक एग्जांपल देख सकते हो, ये एग्जाम में आया है पहले भी। अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है दो कॉइल्स की जिनकी सेल्फ इंडक्टेंसेस गिवन है, मतलब हमें L1 और L2 गिवन है, हमें कैपिटल M निकालना है और हमें K गिवन है 0.15। So we can directly use this formula, simple numerical है, substitute K is equal to 0.15, L1 हमारा 25 मिली हेनरी है, L2 हमारा 100 मिली हेनरी है। तो अगर इसका जब इसको एग्जाम में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसका ध्यान रखना, अगर L1 और L2 को मिली हेनरी से हेनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो कैपिटल M जो है तुम्हारा हेनरी यूनिट में आएगा, और अगर इसको मिली हेनरी ही रख रहे हो तो मिली हेनरी इंटू मिली हेनरी होगा स्क्वायर रूट में 25 मिली हेनरी इंटू 100 मिली हेनरी। तो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलोगे तो यूनिट हमारी क्या आएगी, मिली हेनरी। इसको खुद से सॉल्व करोगे तो ये एग्जांपल तुम्हें क्लियर हो जाएगा, सिंपल है। K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 अपॉन L2। M की यूनिट हेनरी है, L1 की यूनिट हेनरी है, L2 की यूनिट हेनरी है, तो ये हमारा हो गया हेनरी अपॉन अंडर रूट ऑफ हेनरी इंटू हेनरी।
इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो यूनिटलेस है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारा है यहाँ 0.5 विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसको सब्स्टिट्यूट करो इनटू अंडर रूट ऑफ 25 मिली हेनरी इंटू 100 मिली हेनरी, सो वी गेट 7.5 मिली हेनरी। ये न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो इसे ढंग से करना है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने सबसे पहले देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने 3 फैराडे लॉ देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। फिर हमने पढ़ा लेंज लॉ क्या होता है, फिर हमने देखा व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, हाउ वी कैन डिफाइन कैपिटल L द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फिर हमने निकाला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, फिर हमने निकाला एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस कॉइल, फिर हमने देखा व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, फिर हमने डिफाइन किया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके बाद हमने डिराइव किया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड्स, उसके बाद फाइनली हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी ऑलरेडी जो है रिपीटेशंस थी, सिर्फ मैंने आज रिवाइज कराया है, ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड से वी विल स्टार्ट विद द कंप्लीटली न्यू टॉपिक जो तुमने आज तक नहीं पढ़ा, which are Helmholtz equations and these are very very important from your examination point of view। जो आज हमने करा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, the derivation of the self inductance of a long solenoid, the derivation of mutual inductance of two solenoids, the coefficient of coupling और कुछ कुछ definitions, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस।